Anjali, is my voice audible to you? Hi, yes Anmol, yes. Hello. Hi. I'm saying कि start करते हैं. We will provide the recording to all. Okay, okay. कभी आप भी कुछ अगर रिमाइंडर डाल रहे हो तो आप भी डाल सकते हो in case you want to. So you will be recording the video, right? ठीक है. Okay. So Anjali, first of all, ideas, congratulations to you. Thank you, Anmol. It would be better if you introduce yourself to all the participants. Yeah. Hi, good evening, everybody. I am Anjali Shrotria and I have secured rank 44 in this year's UPSC CSE 2021. And overall, talking about my journey, this was my fourth attempt and my second interview with UPSC, and it was also my second mains. So for the initial two attempts, I could not clear my prelims, and then in one attempt, I got less marks in interview, and finally I made it in the fourth attempt. And my optional for UPSC was geography. Apart from that, my main scores in both the years were quite decent. Last year also I had 787 marks, so which was I think around 50-60 more than what the cutoff was, and this year also they are 838. So I would like to address all the queries, but I think if you have to ask me something, I would more than welcoming all the questions. But I think areas where I would be more helpful to you would be essays, in particular, geography optional definitely, and about the mains answer writing. I think this is where I can be of much use to you guys. So Anjali, as you have defined your UPSC journey, so what were the mistakes and takeaway according to you? See, if I tell about the mistakes, first one I'll just go step by step, like as we start the process. In prelims, I would say मेरा जो सबसे बड़ा गलती था, that was that I did not see the previous year questions till my two attempts, and that costed me in the sense that I was not able to clear my prelims for two attempts. And when I did that, I could actually clear prelims with a good margin in both of my attempts. And in mains, I would say बहुत बड़ा as such there was no loophole. I would say that जो चीज मैं नहीं कर पाई थी मेंस में वो ये है कि I could not make very consolidated notes of every topic. I tried to do that, but वो बहुत लेट हो गया था या I had very less time. So that is one thing I think consolidated notes हर topic के मैं नहीं बना पाई थी. I could make it for a few topics. And in interview, I would say that I gave a lot of mocks which are not required. So ye don't have bahut bada. If you're in the interview stage, do not give a lot of mocks. Actually, it did not work for me in both of my attempts. I did the same mistake. But I think it's fine. You learn by your mistakes and also you keep improving also. But these were the don'ts, I would say. So guys, many of you are asking question in the comment section. So let me give you a brief instruction regarding how we are going to proceed. Initially, I am asking to us some general question regarding the preparation. Thereafter, I will open the floor to all so that you can unmute your mic and ask your any question. And in between, if you have any doubt, you can ask in the comment section, which we'll take at the end of the session. And the session duration will be around 1.5 hours. So please try to make your doubts concise. So Anjali, moving to the strategy part regarding prelims, as around 399 days are left for the UPSC 2023. So any particular timeline you want to suggest for the beginner, like till December, you want to suggest mains or what? See, I think for people who are appearing next year, like in 2023, this would not be the time when you should focus on your prelims. आप अभी मेंस पढ़िए at least till December, till January mid. You start your prelims preparation, like full on prelims preparation in between January mid to January end. 15 से 30 January के बीच में you start somewhere your prelims preparation. एक्सक्लूसिवली उसमें सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ना है फॉर 4 months, क्योंकि द नेचर ऑफ प्रीलिम्स इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल. तो एटलीस्ट गिव 4 months. भले ही आपने पहले प्रीलिम्स कितनी भी बार क्लियर करके रखा हुआ, आई थिंक 3 months डेडिकेटेडली सबको पढ़ना चाहिए. आप 4 रख लीजिए फॉर पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम. And see, the
प्रीलिम्स का जो मुझे लगता है व्हाट इज द थिंग या कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। सबसे पहले तो जो बेसिक बुक्स हैं प्रीलिम्स की, जो हम सबको पता है, एंड वी ऑल नो एंड वी ऑल स्टडी फ्रॉम द सेम बुक्स, बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु क्लियर एंड सम हु डोंट क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस इज दैट हम अपने सोर्सेज एक्सपैंड करते चले जाते हैं। यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज। आप सिर्फ और सिर्फ वो 6 बुक्स पढ़िए जो हर कोई बच्चा पढ़ रहा है। So for polity, there is Lakshmikant. Please do not read anything apart from that. Similarly, for modern Indian history, आपने जो पढ़ा है, if you have read NCERT, Bipin Chandra, please stick to that. Or if you have read Rajiv Ahir का Spectrum, you stick to that. But don't read both of them. And geography में you read जो 4 NCERTs हैं, class 11th and class 12th की दो NCERTs, read them thoroughly. And GC Leong का climate वाला जो part है, read that portion in for geography especially. Geography में what you have to extra जो आपको करना रहता है वो atlas वाला part होता है, where you have to go through the world map, India map, वो आपको बहुत अच्छे से cover करना होता है, because mostly we see कि questions in geography are map based questions. देन जो आप करते हैं इकोनॉमी में, सी देयर आर 2 सोर्सेज। एक तो मृणाल सर के कुछ लोग नोट्स फॉलो करते हैं, एंड एक श्रीराम का भी एक बुक आता है। मैंने दोनों देखा था, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप दोनों देखें। मृणाल सर का प्रोज ये है कि वो समझा देते हैं, इसी लैंग्वेज में होता है, सो पीपल गो फॉर दैट एंड दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्सो। बट उसका ये डाउनफॉल मुझे लगता है कि वो 1000 पेज का हो गया है अब, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज सच अ बल्की बुक। श्रीराम सर का बुक का इट्स गुड पार्ट इज कि वो छोटा है किताब, एंड यू कैन इजीली रिवाइज इट, एंड अगेन इट इज इन अ वेरी गुड लैंग्वेज। सो आई प्रेफर्ड sticking to Sriram वाला book for economy, जहां तक I could figure out. Science and tech में there is nothing, no need to read any NCERT for any kind. Even if you're a commerce background student, I don't think there is any need to read NCERTs for science and tech. At max आप न्यूज़पेपर पढ़िए साइंस एंड टेक के लिए, एंड लास्ट में जो आपका कोई भी करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से कीजिए, एंड ट्राई टू गूगल द टर्म्स. If there is any new term that is coming in newspaper, yeah, you are seeing in monthly magazine, try to Google it. Be very inquisitive when it comes to science and tech is what I mean to say. फिर आर्ट एंड कल्चर इज समथिंग जो हम छोड़ देते हैं, उसे छोड़ना नहीं है. यू रीड नितिन सिंघानिया's बुक, उस बुक को कवर टू कवर नहीं पढ़ना है. यू सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड थीम्स इन चैप्टर्स, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप वो लीजिए और वो वाले टॉपिक को वहां से कीजिए. एंड एंशियंट मेडिवल जो अभी तक नहीं आ रहा था, बट नाउ सिंस 2020 यूपीएससी हैज शिफ्टेड टू एंशियंट एंड मेडिवल आल्सो. उसके लिए आप एनसीईआरटीज पढ़िए, दोनों एनसीईआरटीज बहुत अच्छी हैं और they have explained everything in good detail. So you read both the NCERTs, Satish Chandra one for medieval and RS Sharma for your ancient वाला. इसके अलावा आई वुड से प्रीलिम्स में और कोई बुक्स नहीं पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं करनी है, कोई अलग से किताब नहीं होगी वेयर यू विल गेट दोस क्वेश्चंस. तो दिस इज वन मिस्टेक दैट पीपल जनरली डू फॉर प्रीलिम्स. सेकंड, जब आपका ये एक रीडिंग हो जाए इन सब बुक्स का, आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, एंड यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स. सी, बिकॉज 30 क्वेश्चंस यू विल नो इन प्रीलिम्स जो आप अपने इस नॉलेज से सॉल्व कर पाएंगे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है यू हैव टू सॉल्व ऑन द स्पॉट, एंड वो तभी हो पाएगा व्हेन यू हैव दैट हैबिट ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग, एलिमिनेशन जो हम बोलते हैं. यू हैव टू डू दैट. सो वो उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? यू एक्चुअली हैव टू गो बैक and you'll have to sit in your room and write the test papers in the environment of the exam itself. 2 घंटे में आप टेस्ट लिखिए, OMR शीट पे आप मार्क भी कीजिए अगर आप करना चाहें तो, and then see where you are lacking, आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं. अराउंड 60 to 70 पेपर्स आप लिख के जाइए अगर आपका फर्स्ट प्रीलिम्स है तो. दिस इज अ मस्ट. एंड द थर्ड थिंग जो आपको नहीं भूलना है, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जितना पीछे जा सके आई वुड से उतना पीछे जाइए, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई यूपीएससी का क्या पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का. So there's a language of UPSC which they use in prelims. अगर आप उस लैंग्वेज से फेमिलियराइज हो जाते हैं, so that will help you in the main exam. वो कोई कोचिंग will not be able to replicate that language which UPSC uses. तो उसमें PYQs will come very very handy to you. बस ये 3 चीजें आपको लूप पर चलानी है. You have to keep revising, you have to write tests, and you have to solve PYQs. And जब आप ये कर लेते हैं ईमानदारी से, I don't think prelims should be difficult. What I would suggest for prelims. And how did you manage your time as a working professional? And what would you suggest, like busy schedule, how someone can spend time distribution of free with the mail? I am sorry, Anmol, can you just repeat once again? Like, how did you manage your
time being a working profession? See, I was not very मतलब full time मैं working नहीं थी. So in my preparation I was mostly involved with some form of answer writing जो मैं करती थी, and तो मैंने वो जो भी काम लिया था that was more or less related to exam only in some or the other way. तो वो मुझे in a way benefit कर रहा था. Either I used to check papers or I used to read some papers, उस पे आंसर देना, आंसर्स लिखना, फीडबैक लेना. It was only after my third interview I got into a job, and I mean before that I was not into a job. So मैं 24/7 I studied for UPSC only, and I think 2 attempts proper आप घर पे बैठ के दीजिए एग्जाम को. Do not get yourself into any plan B या कोई जॉब में. अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो प्लीज उसके बारे में दोबारा मत सोचिए. 2 साल you give full, and then probably start looking for other options if you want to. Moving to the main part, as you mentioned, you have a strength regarding essay and optional. So, what was your strategy, and what would you suggest regarding the essay? I'll first speak on essay. See, essay में क्या है? There are various strategies जो सबके काम करती है. जो मेरे लिए काम किया, I will tell that. जब मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, I never wrote any essay, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो मेंस का कभी लिखने का मौका नहीं मिला. When I cleared my prelims in 2020, I wrote my first essay in between those 3 months of prelims and mains. के बीच के वो 3 महीनों में मैंने essay start किया लिखना. तो what I figured out was that जो लोग लिखते हैं that's a very mechanical essay कि आपने political, social, environmental, economical, constitutional सारे एंगल लिख दिया and then you conclude it, and एक introduction आप anecdote से लिख देते हैं, and you somewhere land in 110, 100, उससे ज्यादा नहीं मिल पाता है आपको. 120 भी आप नहीं रीच कर सकते with this kind of an approach. This is not wrong, but it's very mechanical. Essay is something which demands your creativity, where you can actually tell the examiner आप कितने creative हैं and how deeply you feel about issues जो भी आपको पूछा गया है ऐसे में. So don't lose out on that opportunity. पहला. सेकेंड आई वुड से कि ऐसे के लिए आप पहले तो कुछ कोटेशंस रेडी करके रख लीजिए ऑफ एवरी थीम दैट यूपीएससी माइट आस्क यू. अगर खुद से आपके पास रेडी नहीं है तो अनुदीप दुर्री शेट्टी सर के कोट्स हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वही यूज कर रहे हैं. अब देखिए वो नोट्स उन्होंने 2017 में बनाए थे, अब वो हर बार वही एस्पिरेंट वही भी पढ़ के जाएगा तो वो कोड्स भी सेम हो जाएंगे जो भी मेंस में लिखेंगे. सो यू आर गेटिंग समथिंग रेडीमेड, उसको आप यूज कीजिए, बट ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट. आप उस पर कुछ अपना एड ऑन कीजिए. लाइक आई यूज दिस नोट्स बट मैंने उन पर एड ऑन किया था. आई वेंट टू सर्च ऑन मोर कोटेशंस एनवायरनमेंट पे, विमेन पे मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैंने उन्हीं नोट्स में ऐड किया था. तो स्टैग्नेंट मत रहिए कि कहीं से कुछ मिल गया तो बस वही हमको पढ़ना है. यू ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट. सेकेंड, यू नॉट टू रीड एनीथिंग न्यू फॉर एसे. आपको सिर्फ कोट्स कलेक्ट करके रखने हैं. थोड़े बहुत एनेक्डोट स्टोरीज अगर आप पढ़ना शौकीन है तो आप वो पढ़िए. अदरवाइज नो कंटेंट इज नीडेड. जीएस अगर आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आपका एसे इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. ठीक है. एंड इसमें मैं फोकस करना चाहूंगी जीएस 4 पर. एथिक्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि फिलोसॉफिकल एसेज आ रहे हैं. पीपल आर कंफ्यूज कि फिलोसॉफिकल के लिए कैसे प्रिपेयर करें. फिलोसॉफिकल एसेज आर नथिंग बट दे आर योर जीएस 4 का ही एक बड़ा सा एक्सटेंशन है. सो प्रिपेयर योर एथिक्स वेरी वेल क्योंकि बहुत एथिक्स यूज होने वाला है फिलोसॉफिकल एसेज में. फोर्थ थिंग जो मैं मेंशन करूंगी एसे के लिए वो ये है कि टॉपिक का सिलेक्शन आप बहुत आराम से कीजिए. जब पेपर में आते हैं टॉपिक्स, आप जल्दी में कोई टॉपिक मत चूज कीजिए. गिव 5 मिनट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. टॉपिक क्या बोल रहा है, बिकॉज इफ यू इंटरप्रेट इट रॉन्गली तो गड़बड़ हो जाएगी. देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स, आप कितना भी अच्छा लिख कर आए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक समझें एंड उसी टॉपिक को चूज कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं. भले ही वो बहुत आसान टॉपिक है एंड यू थिंक कि यार आधे बच्चे तो इसी पर ही लिख के आने वाले हैं, सो व्हाट विल आई वोंट गेट मार्क्स, आई वोंट स्टैंड आउट. डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस. चूज अ टॉपिक which is easy, which is in your comfort zone, then you can easily write on that particular topic. एंड ऐसे में थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करने की कोशिश कीजिए. राइट इन अ गुड हैंड, लेजिबल हैंड में लिखिए बिकॉज इन ऐसे यू हैव टाइम. तो आप ऐसे डिवाइड कीजिए ऐसे में टाइम को कि 15 मिनट्स आप ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए पहला ऐसे. राइट पीछे आपके पास जगह होती है व्हेन यू गेट दैट यूपीएससी का पेपर, यू टर्न बैक, उसमें आप 2 पेजेस पर फटाफट ब्रेनस्टॉर्म कीजिए आप क्या क्या लिखने वाले हैं. एंड देन आफ्टर दोस 15 मिनट्स यू गिव योर टाइम टू योर एसे. 1 hour 30 मिनट्स का मैं रखती थी तो 1 hour 15 मिनट्स में मुझे ऐसे लिखना है, 15 मिनट्स मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है.
एक गलती जो बच्चे कर देते हैं दैट इज दिस स्पिल ओवर दिस टाइम, 1 hour 30 को वो 152 भी कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका सेकंड ऐसे पिटता है, बिकॉज यू हैव ओनली 1 hour लेफ्ट, उसमें 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, 45 मिनट में एक ऐसे लिखना, इट्स इज डिफिकल्ट बिकॉज यू डोंट हैव 10 pages इन ऐसे, यू हैव 12 pages इन ऐसे टू राइट। यूपीएससी की कॉपी में देर आर 12 pages, देर आर नॉट 10 pages। एंड आई बिलीव मी, वो 12 के 12 पेज आप लिख के आइए, आई एम नॉट सेइंग टू फिल द पेजेस, बट इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन व्हेन यू राइट ऑल द पेजेस। एक अच्छा लगता है एक सामने वाले को कि हाँ आपने अच्छे से सब सब लिखा है। इट गिव्स अ सेंस, साइकोलॉजिकली इट अपील्स टू बी रियली गुड। अब प्रिपरेशन पर आते हैं। सी इफ यू हैव नॉट जॉइंड एनी क्लास फॉर ऐसे दैट्स ओके, अगर आपने जो क्लास ज्वाइन करी है तो जो क्लास में बताया गया है फॉलो दैट। अगर नहीं ज्वाइन किया तो कैसे करना है, विच वॉज माई केस। तो आई टुक हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, मैं और अपना एक मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों ने टॉपिक्स डिवाइड किए एंड वी यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म दोस टॉपिक्स खुद से अकेले से कि हम इस पे क्या क्या डायमेंशन खोल सकते हैं, देन वी यूज्ड टू डिस्कस इट। इससे क्या हुआ कि हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग बढ़ा, थोड़ा सा दिमाग खुला कि कैसे सोचना है ऐसे में। फिर मैंने एक अपना ऐसे का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे ऐसे इस फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन रहता है ऐसे में। अब दो एसेज हैं आपके पास, दोनों के सेम इंट्रोडक्शन मत लिखिए कि अगर एक में आपने एनेक्डोट लिखा है तो सेकंड ऐसे में भी आप एनेक्डोट ही लिख देंगे, तो वो इट विल बी मोनोटोनस कि दोनों में अपने स्टोरी बना के लिख दी। एक में अगर एनेक्डोट लिख रहे हैं तो दूसरे में कोई स्टोरी लिखिए, या किसी न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस के फॉर्मेट से स्टार्ट कीजिए। कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी से स्टार्ट कीजिए, कुछ एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। तो कहने का मतलब है दोनों ऐसे की सेम स्टार्टिंग मत रखिए, व्हाट आई ऑलवेज प्रेफर्ड इन एसेज। दोनों ऐसे को अलग अलग आप स्टार्टिंग दीजिए, तो वो थोड़ा अलग लगेगा एग्जामिनर को भी पढ़ने में। मेरे जो एनेक्डोट्स होते थे दे वर ऑलवेज रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मन से एनेक्डोट्स बनाते हैं, विच इज ऑल्सो गुड, आप मन से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रियल एनेक्डोट होता है ना तो एक कनेक्ट अच्छा होता है एग्जामिनर के साथ। ही ऑल्सो कनेक्ट्स विद योर एसे। The essay in 2020 was about life is a long journey from being human, from human being to being humane. तो इसमें मैंने जो एनेक्डोट लिखा था इट वाज अबाउट अशोका, हाउ हिज लाइफ चेंज फ्रॉम जस्ट बीइंग अ ह्यूमन टू ह्यूमन आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। उसको मैंने डिस्क्राइब किया था 1.5 पैराग्राफ्स में, एंड देन आई रोट स्टार्टेड माय एसे विद दैट। इससे दो चीजें सर्व हुई, अशोका की स्टोरी एवरीबॉडी नोस एंड व्हेन यू राइट इट द एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि यस यू हैव गॉट द मीनिंग, जो ऐसे बोलना चाहता है आप वो समझ चुके हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ अ रियल एनेक्डोट। तो ऐसे एनेक्डोट्स आप कलेक्ट कीजिए, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट लिख रहे हैं तो you try to collect such kind of anecdotes. Like I had a habit of reading short stories of पंचतंत्र हो गई, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, तो मैं इनकी स्टोरीज बहुत यूज करती थी। लाइक श्री कृष्ण की जो स्टोरीज है एंड ऑल ऑफ दैट विल कम वेरी हैंडी इन योर एसेज, और वो बहुत अच्छी लगती है व्हेन यू राइट इट। तो ट्राई टू बी यूनिक एंड इनोवेटिव इन योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप जितने पंच मारना चाहे मारिए, बिकॉज दैट विल गेट यू मार्क्स इन एसे। आफ्टर इंट्रोडक्शन आप क्या करिए, एक नरेशन वाला पॉइंट आता है जहां पर आपको ऐसे स्टार्ट करना होता है, बट बीच में यू हैव टू फिल इट, वो फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन यू कम टू द ट्रांजिशन वेयर यू विल एक्सप्लेन कि इस ऐसे में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो एक वो पैराग्राफ होता है जो सबको लिखना ही पड़ता है कि इन दिस ऐसे वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड देन यू लिस्ट डाउन 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं वैसे ही लिखती थी कि इन दिस ऐसे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज मेंट बाय लाइफ, व्हाट इज मेंट बाय बीइंग ह्यूमन, व्हाट इज मेंट बाय बीइंग ह्यूमन, एंड इन द एंड वी शुड आल्सो ट्राई टू आंसर दैट हाउ आर वी गोइंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम जस्ट बीइंग अ ह्यूमन टू बीइंग ह्यूमन। तो ऐसे करके आपने एक स्मॉल समरी काइंड ऑफ जिस्ट दे दिया है एग्जामिनर को कि लुक आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंटर्स इन माय एसे अहेड। फिर आप आइए अपने ऐसे पर। तो अब जैसे अब पैराग्राफ चेंज कर दे, बहुत बच्चों का ये रहता है कि पैराग्राफ चेंज कर दिया, अब दे स्टार्ट राइटिंग तो फ्लो ब्रेक हो गया, फ्लो कैसे मेंटेन करें। व्हेन यू डू अ ट्रांजिशन आप उसे कन्वर्सेशन रखिए। जैसे आपने ये लिखा कि इन द एंड वी शैल आल्सो डिस्कस दिस दिस दिस, अब मैं पैराग्राफ चेंज कर रही हूँ, तो आप उसको कंटिन्यूएशन में लिखिए कि हैविंग डिस्कस्ड द एरियाज द ब्रॉड कंटूर्स ऑफ द एसे, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वेरियस डायमेंशंस where we can explore the essay further. This is your connecting line. बस this will serve the purpose of flow. तो ऐसे करके आपका ऐसे जो रहेगा वो फ्लो में रहेगा। And then you start by defining the terms in essay की ऐसे में टर्म्स जो है सबसे पहले उनको डिफाइन कीजिए। जैसे what is meant by life, what is meant by just being a human, and what is meant by human, and how life is a long journey. 4 एरियाज है, अगर हर एक पे भी आप 3-3 4-4 लाइंस भी लिखते हैं, आपका एक पेज तो इसी में ही भर जाएगा कि यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट इज मेंट बाय द एसे, एंड कीवर्ड जैसे कि डिफाइन करना।
तो आप जो भी लाइफ से समझते हैं, अब इसमें आपकी क्रिएटिविटी आएगी कि व्हाट इज लाइफ. So life is not just about birth or it's about death. It is also about how, as a human being, you conduct yourself, right? Then it's a lovely creation of God. जो भी आप लिखना चाहें, there is no end to imagination here. Similarly, what is meant by being human? So being human is, when you are saying that this person is just human, it means that he's just very selfish, बहुत self-centered है, he only thinks about himself, right? He keeps his priorities over the public and the society. And what is meant by being human, यहाँ पे आप ethics के फंडे लाइए. Being human is utilitarian, thinking about the larger good, societal good, welfareistic approach. ये सब चीजें जो ethics में आपने पढ़ा है, bring that here when you try to describe the keywords. फिर आप एक transition कीजिए, जब when you complete this thing, तब आप एक ट्रांजिशन कीजिए ऐसे में. देन वो जो आप पेस्टल अप्रोच सब लगाते हैं, देन यू से कि हैविंग सीन दैट व्हाट इज लाइफ एंड अदर्स, नाउ लेट अस सी दैट हाउ लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी इन द रियल सेंस. नाउ फिर आप स्टार्ट कीजिए कि सोशली में आप एक पॉइंट हमेशा खोल सकते हैं. विमेन में, तो विमेन के आप एग्जाम्पल्स दीजिए जहां पर आप बता सकते हैं कि कहाँ पे उनकी लाइफ ट्रांजिशन हुई है. हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स आप लीजिए, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पे लोग अल्टीमेटली चेंज हुए हैं. गिव एग्जाम्पल ऑफ अंगुली माल, बुद्धा की जो स्टोरी है अंगुली माल वाली, where that dacoit he turned into a saint after meeting Lord Buddha. वो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. और इसमें सिर्फ 4 से 5 आप डायमेंशन खोलिए. जरूरी नहीं है कि हर ऐसे में सारे डायमेंशन खुल जाएंगे. इकोनॉमिकल भी मुझे लिखना है, पॉलिटिकल भी लिखना है, सोशल भी लिखना है. पिक अप 4 to 5 रेलिवेंट डायमेंशन जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं. उसमें भी एग्जाम्पल्स जो आप देंगे दे शुड बी जस्ट 30%, बाकी पूरा नरेशन होना चाहिए. जैसे अगर आप सोसाइटी के एग्जाम्पल लेना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सोसाइटी में कैसे लोगों का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम जस्ट बीइंग ह्यूमन टू ह्यूमन, तो उसमें आप सपोज जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसमें आप ये लिखिए कि पहले आप बताइए कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी की लोग ह्यूमन बने. तो उसमें मैं हमेशा बताती थी कि सोसाइटी में हम सब रहते हैं साथ में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that humanness should come because ultimately the larger good will be served when we are human. And then you write for example जो भी आपको एग्जाम्पल लिखना है सोसाइटी में, जो भी जिन्होंने भी टर्न किया सोसाइटी को अच्छे तरीके से. इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको मार्क्स दिलाएगा, वो है कि अब आप क्या कीजिए. जब आपने डायमेंशन एक्सप्लेन कर दिए, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर दिए ऐसे में, नाउ यू पुट अ क्वेश्चन मार्क दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ह्यूमन. हम बात कर रहे हैं कि लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम जस्ट बीइंग ह्यूमन टू ह्यूमन. So just put a question mark on that essay and you try to tell the examiner that why it is important to be human. अब जो आपने ethics में पढ़ा है ना, why it is important to be human, तो वो सब आप चीजें लिखिए कि for the larger individual level पे अगर हम human होंगे तो it will give us self satisfaction, it will be a driving force and internal motivation to all of us. Similarly, societal familial level पर अगर आप human होंगे तो you'll be able to care for your siblings, parents. Societal level पे it will serve the larger good. नेशनल लेवल पे हमारा अच्छा होगा, कंट्री विल प्रोग्रेस. इंटरनेशनल लेवल पे पीस हार्मनी होगी. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ह्यूमन. देन यू राइट डाउन एक डायमेंशन जब आप ये एक्सप्लोर करेंगे, देन यू आल्सो गिव अ कॉन्ट्ररी दैट व्हाट इफ वी आर नॉट ह्यूमन. क्या होगा अगर आप ह्यूमन नहीं होंगे तो यू टेल द एग्जामिनर दैट वी हैव हैड इंस्टेंसेस फ्रॉम हिस्ट्री से आप आइए, यू टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर्स जहां पर ह्यूमैनिटी नहीं शो की गई थी. And till the today, you can talk about the wars in Yugoslavia, जो ये इनफैक्ट यमन में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, इट इज ऑल सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, एवरीवेयर वेयर वी हैव शोन दैट ह्यूमननेस नहीं दिखी है हमको लाइफ में. तो उससे क्या हुआ है? एंड देन यू कम डाउन टू हाउ टू बिकम ह्यूमन, कि आप ह्यूमन बनेंगे कैसे. तो उसमें आपका एथिक्स का पार्ट आएगा विच इज सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन इज समथिंग जिसके थ्रू आप में वैल्यूज आएंगी बचपन से. एंड हाउ विल यू टर्न योर ह्यूमननेस. रोल मॉडल्स हो गई, वी नीड रोल मॉडल्स लाइक मलाला हो गई, and all other people who have done a great contribution. एक होता है इन सब के बाद when you have answered all these questions, please do not forget antithesis in essay. Antithesis मतलब जो भी essay ने कहा है एक पैराग्राफ में also try to refute it. जैसे life is a long journey वो बोल रहे हैं, you can also say कि life always doesn't need to be long. It can be a short journey which can teach you how to be human. उसमें आप एग्जाम्पल दीजिए मलाला का कि उनकी लाइफ इतनी छोटी है बट स्टिल शी टर्न्ड इनटू समथिंग व्हिच इज ह्यूमन. तो मतलब द पॉइंट इज दैट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो लॉन्ग हो, शॉर्ट में भी यू कैन अचीव योर एम. सो यू रिफ्यूट योर एसे आल्सो इन वन पैराग्राफ. सिर्फ वन पैराग्राफ में आप एसे को रिफ्यूट कीजिए. एंड टुवर्ड्स द एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू फॉलो बुद्धा का मध्यम मार्ग दैट इट्स नॉट अबाउट लॉन्ग और शॉर्ट हो. इट इज अबाउट कि आप अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं. एंड प्रोबेबली ह्यूमननेस जो है वही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए लाइफ का. दैट इज द रियल एनलाइटनमेंट फॉर व्हिच वी हैव कम ऑन अर्थ एंड दैट विल सर्व द लार्जर पर्पस, द लार्जर गुड फॉर अस टू बी रिमेंबर्ड बाय ऑल. So end this on a very happy note, very nice note.
इससे क्या हुआ, आपका ऐसे में फ्लो है, आपके ऐसे में एग्जांपल्स है, नरेशन है, एंड योर ऐसे डजंट लुक मैकेनिकल, इट लुक्स एन ऐसे जो कि आपने हार्ट से लिखा है, इमोशनल काइंड ऑफ एन ऐसे आप लिख रहे हैं. So that touches a chord with examiner which helps you get good marks. Simple रखिए ऐसे को, बहुत आसानी से आपको मार्क्स आएंगे. फिलोसॉफिकल ऐसे आए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि फिलोसॉफिकल ऐसे में आपके पास बहुत डायमेंशंस होंगे एक्सप्लोर करने के लिए. एग्रीकल्चर, वुमेन इश्यूज, इन पे ज्यादा नहीं होते. फिलोसॉफिकल एसेज आर दे एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी अ लॉट. चूज फिलोसॉफिकल एसेज, आई वुड से दे आर इजी. बस आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइए. I think, can we give headings in essay? Yes, you can give headings. See, Pragya, what I used to do was मैं एक ऐसे में सिंपल लिखती थी फ्लो के साथ, और एक ऐसे में मैं हेडिंग्स देती थी. तो मैं दोनों ऐसे को थोड़ा अलग करती थी एक दूसरे से. You can give headings also, no issue. Guys, one thing I want to mention, like अगर मीटिंग में कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है, then we can join through the same link. Sure. Also, Anjali, I want to move to the next important thing. Like you have mentioned regarding the importance of note making and consolidation of notes. So, what would you suggest how to do that, and how these notes are important for the answer writing? See, मेंस को जो क्लियर करने का जो एक आई वुड से जो एक वो है, दैट थिंग, ब्रह्मांड या ब्रह्मास्त्र जो भी आपको बोलना है, वो है आंसर राइटिंग, एंड वो है आपके छोटे नोट्स बनाना. नाउ कंसोलिडेटेड नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन, इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे. सेकंड, मेंस का ऐसा कोई एरिया नहीं है जो एक किताब में आपको पूरा अच्छे से मिल जाए. सो यू नीड टू हैव योर ओन नोट्स. आपको डिजिटल बनाने, आपको ऑफलाइन बनाने, यू चूज योर एरिया, बट नोट्स आर अ मस्ट. What I used to do was, आप 4 A4 size papers लीजिए and you write down the syllabus of UPSC in those A4 sheets. I wrote it with my own hand, ताकि, और मैंने उनको पेस्ट कर दिया था. अब मैंने हर एक सिलेबस के टॉपिक को उठाया. फॉर इंस्टेंस, इफ आई टॉक अबाउट GS2 में गवर्नेंस एक टॉपिक है, एंड गवर्नेंस में देयर आर टॉपिक्स लाइक वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, या फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस, रोल ऑफ NGOs हो गया, रोल ऑफ SHG हो गया, वेरियस अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया. इन पर मैंने 1 पेज के नोट्स बनाए. अब नोट्स कैसे बनाने हैं, यू गूगल, आप जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को लिखिए. बेसिक स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर यूपीएससी करके आप लिख दीजिए, सफिक्स लगा दीजिए यूपीएससी. 4-5 लिंक्स आ जाएंगी गूगल पर. चूज एनी 2-3 लिंक्स, ओपन कीजिए उनको, एंड अपने नोट्स बनाना चालू कीजिए. अब नोट्स में भी आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नोट्स बनाने हैं. ऐसे नहीं कि आपको जो मिल रहा है आपने सब लिख लिया. राइट डाउन एन इंट्रोडक्शन इन योर नोट्स की बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा तो मैं डिफाइन करूंगी बेसिक स्ट्रक्चर को, उसका डेफिनेशन आपने लिख लिया. Then I used to have some kind of diagram, थोड़ा सा schematic kind of, ताकि बोरिंग ना लगे. तो स्पाइडर डायग्राम्स बना के आप बता सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, सुप्रीमेसी है, वेलफेयर स्टेट है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस है हमारी कंट्री में, देन योर फेडरलिज्म है, सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. तो ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर के थोड़े से पॉइंट्स बता दिए जस्ट बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद नोट्स में आप ये लिखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि अच्छे हैं. व्हाट इज द गुड पार्ट अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर. तो इट्स अ जुडिशियल इनोवेशन, बट it has helped judiciary in a lot of times where legislature or otherwise other organs were doing a breach. तो वो सब आप एग्जांपल्स बताइए कि कैसे जुडिशियल, कैसे आपका बेसिक स्ट्रक्चर हैज हेल्प्ड कीप द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट. एट द सेम टाइम आप उसका एंटी भी लिखिए कि ऑल्दो बेसिक स्ट्रक्चर इज वेरी गुड, इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारे फाउंडिंग फादर्स की वो उसको अच्छे से रख रहा है, बट इट्स अ जुडिशियल इनोवेशन आफ्टर ऑल. कुछ लोग बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को ब्रीच कर रहा है. हाउ कैन जुडिशरी से कि दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज नॉट. अल्टीमेटली जुडिशरी वुड डिसाइड इट. तो इसमें तो काफी ज्यादा वो है कि ओनली वन ऑर्गन इज डिसाइडिंग व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज नॉट. सो ऑल्सो राइट एंड एंटी पॉइंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की क्या हो सकते हैं. उसके बाद आप एक रिकंसाइल कीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या इनोवेशंस आप लाना चाहेंगे या क्या होना चाहिए इन द टुवर्ड्स द कंक्लूजन जो आप लिखना चाहें, वो आप एज अ कंक्लूजन लिखिए. उसके बाद अगर कोई पॉलिटी का कोई भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, ट्राई टू सर्च फॉर आई वुड से आर्टिकल्स, अगर आपको मिल पाए. जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में तो कोई आर्टिकल नहीं है, बट देयर आर डिफरेंट केसेस एंड जजमेंट्स रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर. जैसे कि इंदिरा स्वानी का जजमेंट हो गया था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस है, उसके बाद SR बुमाई वाला केस है, द केशवानंदन भारती केस है. राइट, 2-3 केसेस आप लिख लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर में. मुझे ये केसेस लिखने हैं अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्वेश्चन आएगा तो. एंड देन गो बैक टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आप देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर से क्या क्या क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा है. इफ यू आर एबल टू आंसर दैट, आप थ्रू योर नोट्स, यू आर वेल एंड गुड. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं
तो आप देखिए कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा है एंड देन ट्राई टू सर्च इट ऑन योर ओन, उसको थिंक कीजिए एंड अपेंड इट टू योर नोट्स. दैट इज द ओनली वे यू विल मेक योर नोट्स. फॉर जीएस के लिए आप हर एक टॉपिक के ऐसे ही नोट्स बनाइए. And regarding answer writing, what would you suggest? See, दो तरीके होते हैं. इवन शेष्टा इज आस्किंग मी वेदर यू नो आप हैंड इन हैंड करिए या पहले बना लीजिए और फिर बाद में आंसर राइटिंग कीजिए. इट डिपेंड्स अगेन. आई वाज समबडी जिसके पास कंटेंट बहुत कम था व्हेन आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग. तो मुझे बहुत फ्रूटफुल नहीं लग रहा था. मुझे पता ही नहीं था क्या है सार और क्या है एसईओ. मैं क्या उस पे लिखूं, या तो मैं पढूं और फिर मैं लिखूं. दैट इज वन वे व्हिच इज आल्सो गुड. वो भी आप कर सकते हैं. आई फोकस्ड ऑन पहले मैं सबके नोट्स बना लेती हूँ कंसाइज और टाइम लिमिट के अंदर. ऐसा नहीं कि बस बनाए जा रहे नोट्स ही बना रहे 4 महीनों से. नो, 15 दिन में एथिक्स के नोट्स बना के खत्म करने तो 15 दिन में खत्म करने. फिर उसमें कुछ टॉपिक्स छूट जाए दैट इज ओके. ठीक है. तो आई डिसाइडेड अ टाइमलाइन की जीएस2 का मुझे पॉलिटी का सेक्शन कम से कम आई विल डू इट इन 20 डेज. तो मैं 20 डेज में खत्म किया एंड देन आई स्विच्ड टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके आंसर लिखना चालू करे 10 एक 12. उसके बाद फिर से पॉलिटी पे आए, फिर से देखा कौन सा टॉपिक छूट गया, फिर कवर किया, फिर आंसर लिख लिया. आई लाइक दिस अप्रोच मोर देन डूइंग इट साइमल्टेनियसली. मुझे वो जमता नहीं था. एंड आंसर राइटिंग के लिए आई वुड से सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा यूपीएससी के क्या है. डू नॉट रन टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की उनके उसमें क्या पूछ रहे हैं. फर्स्ट सी यूपीएससी ने क्या पूछा है. दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू. उसके बाद जितना आप आंसर को तोड़ सके इन द सेंस की यू ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट सब पार्ट्स. तो हर एक सब पार्ट को आपको आंसर करना है. आपका जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन काफी लंबा आता है यूपीएससी बिल. एक फॉर्मेट रखें आप अपने आंसर्स का. जैसे कि फॉर मी इट वाज मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है. पॉलिटी में मैंने बना लिया था कि आर्टिकल से स्टार्ट करना है. जजमेंट्स होनी चाहिए अगर इंट्रोडक्शन में ही मैं डाल सकूं तो. उसके बाद मुझे एक डायग्राम या कुछ थीमेटिक फॉर्म ऑफ अपने इसमें इंक्लूड करना है ताकि थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहे आंसर में. एंड देन सब हेड्स बनाने हैं आपको. क्लियरली सब हेड्स बनाने हैं क्वेश्चन के. जो भी क्वेश्चन में पूछा है मेक अ सब हेड, उसको बॉक्स कीजिए एंड देन राइट 4 to 5 पॉइंट्स आफ्टर एवरी सब हेड. और क्वेश्चन को 3-3 पैराग्राफ्स में लिखिए एंड राइट डाउन इन पॉइंट्स पैराग्राफ्स का मिक्स रखिए. सिर्फ पॉइंट्स में नहीं लिखना है, सिर्फ पैरा में नहीं लिखना है, दोनों का मिक्स रखिए. आईआर के क्वेश्चंस आए, वर्ल्ड मैप्स का यूज कीजिए आप. राइट, यू हैव टू ड्रॉ वर्ल्ड मैप्स, यू हैव टू ड्रॉ इंडिया मैप्स इन आईआर. एथिक्स में डेफिनेशंस आपके टिप्स पर होनी चाहिए. डायग्राम्स एंड कोटेशंस हैव टू बी ऑन योर टिप्स एंड एग्जांपल्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. अब एथिक्स में डोंट जस्ट प्रिपेयर द एग्जांपल जो बहुत पुराने एग्जांपल्स चले आ रहे हैं. एवरीबॉडी इज राइटिंग दोस क्लीशेड एग्जांपल. आप बेटर इंडिया पे जाइए, कुछ नए एग्जांपल्स ढूंढिए सो दैट गिव्स काइंड ऑफ न्यू लुक टू योर आंसर्स. वो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए. सिमिलरली अगर आप गवर्नेंस के कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो ट्राई टू इंक्लूड करंट अफेयर्स इनटू योर इंट्रोडक्शंस, इनटू योर कंक्लूजन. एसडीजी गोल्स से आप कंक्लूड कीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स से आप कंक्लूड कीजिए. हंगर की कोई क्वेश्चन आया है तो इंक्लूड योर गवर्नमेंट स्कीम. पोषण अभियान इंक्लूड कीजिए. राइट टू हमारा फूड है, एनएफएसए एक्ट है, और भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है, ट्राई टू इंक्लूड दोज इन योर कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को आइडिया लगेगा कि आपको समझ भी आता है क्वेश्चन या नहीं. एंड कंक्लूजन से थोड़ा रिसेंसी इफेक्ट होता है. जब वो आपको मार्क्स देगा तो जो आपने कंक्लूजन में लिखा होगा वो उसके दिमाग में होगा कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए. तो ये दोनों पार्ट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस कीजिए. बॉडी में आप कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए. कीवर्ड्स आने चाहिए. हर एक टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स होते हैं. वो कीवर्ड्स आप बिल्कुल अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स. तो वो आप ध्यान रखिए. जैसे आईआर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कीवर्ड है, वो आप लिखिए जहां पर भी आप लिख सके. दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स विल गिव यू मार्क्स. एंड टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए. आंसर राइटिंग आप जब भी कर रहे हैं, डू नॉट स्पिल ओवर टू 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा. दैट इज इमटेरियल. वो आप बहुत पहले अगर आप कर रहे हैं 15-20 दिन के लिए तो ठीक है. वंस यू हैव कंटेंट एट योर डिस्पोजल, आपको 7 से 8 मिनट से ज्यादा एक आंसर को नहीं लिखना है. अनलेस एंड अनटिल यू राइट इन दैट प्रेशर, आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे. तो जो भी हो सके आप जितना भी बेकार लिखे आंसर, बट यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग योर आंसर विद इन 7 to 8 minutes only. Okay. Anjali, you have optional geography. Yeah. So any comprehensive strategy you want to suggest? Like many people are asking in the comment section. See, geography के लिए I will tell important things जो मुझे लगता है बहुत important है. वन, एक तो सिलेबस है ही. गाइड तो इज द सिलेबस. उसमें भी पेपर 1 इज समथिंग जो कि बहुत प्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चंस पता होते हैं. स्टैटिक पार्ट है तो कि मुझे ये बुक्स पढ़ना है. तो मैंने सविंदर सिंह की बुक्स पढ़ी थी पेपर 1 के लिए, जो हमारा पेपर 1 का सेक्शन ए होता है.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेक्शन बी होता है उसमें थॉट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योग्राफी में। तो उसके लिए मैंने बुक्स पढ़ी थी और अपने क्लास नोट्स रेफर किए थे शबीर सर के, तो उसमें मुझे काफी हेल्प हुई थी। आरडी दीक्षित वाली बुक पढ़ी थी मैंने, और एक सुदीप्ता अधिकारी की बुक पढ़ी थी। मॉडल्स एंड थ्योरीज के लिए माजिद हुसैन पढ़ना है, एंड बाकी टॉपिक्स के लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़ना है पेपर 1 में। एंड पेपर 2 में अगर आप बुक्स देखेंगे तो आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, विच इज डी आर खुल्लर वाली बुक है, दैट्स इट, बिकॉज पेपर 2 इज टोटली जनरलिस्टिक काइंड ऑफ अ पेपर। Ma'am, I want to ask you something if you don't mind. या तौफीक। Yeah, my first of all, I want to introduce myself. My name is Mohammad Tawfiq, and I live in Indore, Madhya Pradesh. Yeah. And yeah, I done my 12th standard in last year, and now I just started my preparation. And so I just wanted to know how we can make these smart notes, and like you can say that a notes like. So how we can? I am totally confused about the note making is like. So if you will tell me, then it's a big, it's a great for me because I'm talking with you right now. So first, and ma'am, congratulations because you have secured All India rank 44. So like, congratulations for that. Thank you, Tawfiq. I'll get back to what I was telling about geography. To answer your question, Tawfiq, I think एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आप पूछ रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको करंट अफेयर्स से, तो मैं जो करती थी करंट अफेयर्स में, मैं जो भी पढ़ती थी करंट अफेयर्स के लिए, वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता था किसी भी कोचिंग का, आप करंट अफेयर्स रेफर कीजिए। मुझे विजन का पर्सनली अच्छा लगता था तो मैं उनका पढ़ती थी। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए करंट अफेयर्स के। मैं क्या करती थी, उनको एक रीडिंग में पेन से हाईलाइट करा, दूसरी रीडिंग में हाइलाइटर से हाईलाइट करा, और तीसरी रीडिंग में साइड में जो स्पेस होती है मार्जिन में, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, और स्टिकी नोट्स का यूज करके मैं पॉइंट्स लिख लेती थी उसके ऊपर ही, टॉपिक के ऊपर ही। एंड फिर फोर्थ रीडिंग में मैं क्या करती थी, जो मुझे अच्छा लगता था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंटर्स मेरे पास होने चाहिए, बस मैं उन्हीं के ही नोट्स बनाती थी। अदरवाइज मैं पूरी करंट अफेयर मैगजीन के नोट्स नहीं बनाती थी। Ma'am, Yeah. can I say something Yeah. with your permission? Yeah. Actual, how we can make notes from a static part of the syllabus, like a static part. देखो, स्टैटिक पार्ट के लिए जैसे आप अगर सोसाइटी का सिलेबस देखते हो, इट्स कम्प्लीटली स्टैटिक है ना। पहला टॉपिक होता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो आप क्या करो, A4 साइज का एक शीट लो, यू टेक अ पेपर एंड यू राइट डाउन दिस टॉपिक। एंड अगर आप कोई फाउंडेशन क्लास कर रहे हो तो उसमें ये टॉपिक सिखाया जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप गूगल करिए इस टॉपिक को एंड यू राइट डाउन। व्हेन यू राइट डाउन सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी यूपीएससी, यू विल गेट अराउंड 8 to 10 सेलिएंट फीचर्स। ठीक है, आपको वही के 8 to 10 सेलिएंट फीचर्स लिखने हैं, और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको मिलेगा सेलिएंट फीचर कास्ट सिस्टम। उसमें आप एग्जांपल के तौर पे लिखिए कि कास्ट सिस्टम आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है इंडियन सोसाइटी में। आपको मिलेगा जॉइंट फैमिली सेलिएंट फीचर, उसमें आप बताइए जॉइंट फैमिली के बारे में, आप 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए। सिमिलरली यू विल गेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, उस पे आप 2-3 लाइंस का नोट्स बना लीजिए। सो फॉर एवरी टॉपिक यू विल हैव टू डू अ गूगल सर्च, या फिर आपके खुद के कोई क्लास नोट्स हैं तो वहां से आप उनको कंप्रेस कीजिए और A4 शीट्स में उनको लाइए। दैट इज हाउ यू गो अबाउट स्टैटिक पार्ट ऑफ सिलेबस। Okay, can you give me your at least 5 minutes because I want to share with one thing what is happening right now with me, if you don't mind, ma'am. Okay, you So I can think- ask later on. First, we will address the question of other guys So also. can I address the doubts? You can ask me at that time. Okay. Yeah. Bye bye. Hello. जो Ma'am, ज्योग्राफी का thank- जो ज्योग्राफी का आई वाज टेलिंग अबाउट द आंसर राइटिंग, उसमें मैं ये बता रही थी कि जो पेपर 1 में हमको जो बुक्स पढ़नी पड़ती है सविंदर सिंह की, आप सेपरेट बुक्स भी पढ़ सकते हैं। आप एक फिजिकल ज्योग्राफी का किताब आता है वो भी पढ़ सकते हैं। सेपरेट में ये रहता है कि सिलेबस सारा कवर्ड होता है, और उसको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। जो मैंने किया था, मैंने सिलेबस के पॉइंटर्स देखे और मैंने सारी चीजें सिलेबस वाइज पढ़ी उन बुक्स से। तो आप वैसे कर सकते हैं, सेपरेट बुक्स पढ़ सकते हैं सविंदर सिंह की। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के नोट्स नहीं बनाने हैं। आप ज्यादा नोट्स नहीं बनाए किसी भी चीज के। आई वुड से नोट्स सिर्फ उन्हीं चीजों के बनाइए जो आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहा है या वो अगर बहुत बड़ा है। सविंदर सिंह के नोट्स नहीं बनाने हैं, एनसीईआरटीज के भी नोट्स नहीं बनाने हैं। तो मैंने उनको इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया उन्हीं बुक्स में, और अपने नोट्स में बस उन चीजों को लिख लिया सविंदर सिंह से जो मुझे लगा कि मेरे नोट्स में नहीं है और यहाँ पर बहुत अच्छे से दे रखी है।
उसके बाद मैंने ज्योग्राफी में 2 कॉपीज बनाई थी डायग्राम्स की, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सो आई कोलेटेड ऑल द डायग्राम्स एक जगह पर, पेपर 1 के सारे डायग्राम्स, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं पेपर 1 में, सिमिलरली पेपर 2 में बहुत सारे इंडिया के मैप्स होते हैं, वो सब मैंने एक जगह पर बना लिए थे। ऐसे आप 2 कॉपीज बना सकते हैं। एंड देन यू मेक अ शीट ऑफ ऑल द जोग्राफर्स एंड द वर्क्स व्हिच आर डन बाय देम। एक टेबल बनाइए, आप जोग्राफर का नाम लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, पहले लेट्स से जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें टॉपिक का नाम लिखिए आप, सपोज स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज, उसमें सबसे पहली थ्योरी आप डेविस की लिख रहे हैं, तो राइट द कंप्लीट नेम ऑफ द जोग्राफर विलियम मॉरिस डेविस, उन्होंने कौन से ईयर में 1889 में उन्होंने अपनी कौन सी किताब लिखी है, एंड व्हाट वाज हिज वर्क एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। ऐसे करते करते आपके पास अराउंड 100-120 जोग्राफर्स की एक लिस्ट बन जाएगी पूरे टैबुलर फॉर्मेट में, विच यू कैन यूज अक्रॉस ज्योग्राफी के डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स। ये मैंने किया था, विच हेल्प मी अ लॉट। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज ये कर सकते हैं ज्योग्राफी में कि यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 पीपल जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, एंड ट्राई ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आई वाज लकी इनफ, मेरे पास एक बहुत अच्छा ग्रुप था एंड ऑल्सो माई फ्रेंड्स, तो उनके थ्रू सारे मुझे, मतलब हम लोगों ने सारे आंसर्स जो थे वो कोलेट कर लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो आपके पास जब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंसर्स रहता है तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। आपके पास यू हैव ऑल द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यूपीएससी, नाउ यू रीड देम एंड देन यू हैव एन आइडिया कि मुझे आंसर में क्या क्या लिख के आना है इस बार पेपर में। तो एक वो चीज आप जरूर कीजिए। एंड आई वुड से आप थोड़ी सी मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर से केस स्टडीज एग्जांपल्स कलेक्ट कीजिए ज्योग्राफी के लिए। व्हेन यू रीड डेली न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, एग्जांपल्स लिखिए और केस स्टडीज लिखिए। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, डाउन टू अर्थ भी पढ़ सकते हैं। आई डिड नॉट रीड इट, मैंने न्यूज़पेपर से काफी एग्जांपल्स इकट्ठे कर लिए थे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। डू रीड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर उस टाइम वो आती है तो ये सारी चीजें मैंने की थी ज्योग्राफी के लिए, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स के लिए। अदरवाइज सिलेबस अच्छे से करके जाइए, आंसर्स लिखिए ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है ज्योग्राफी में। सो यू हैव टू मेमोराइज द कंटेंट ऑन योर टिप्स। मेमोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। आप अपने रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना के रखिए। मेरे लिए आई प्रिपेयर्ड माई रेडीमेड इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स फॉर टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी एंड फॉर जीएस ऑल्सो, ताकि मेरा टाइम मेन एग्जाम में बच जाए। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, इंक्लूड जोग्राफर्स। एक आप फंडा रखिए कि 10 मार्क के क्वेश्चन में ज्योग्राफी में आपको एक मैप बनाना है, 15 मार्कर में 2 बनाने हैं, कम से कम 20 मार्कर में 3 बनाने हैं, इससे कम होना ही नहीं चाहिए। ज्योग्राफी यू हैव टू मेक मैप्स लाइक एनीथिंग। मैप्स, डायग्राम्स ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। एंड डू नॉट इग्नोर मैप का जो पॉइंटिंग सेक्शन आता है हमको 20 मार्क्स का पेपर 2 में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे वो नहीं करते हैं, तो वो वाला मैप पॉइंटिंग भी आप करके जाइए घर पे, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। दैट विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। Okay. Guys, I'm opening the floor to all of you. So just raise your hand and I can take your name one by one so that you can ask your doubt to the panel. Yes, Puneet, you can ask your doubt. गुड आफ्टरनून मैम। या गुड इवनिंग पुनीत, टेल मी। मैम मेरा अटेम्प्ट 2024 में है, पर मैं अभी जनवरी तक अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल खत्म करना चाहता हूँ। घर पर हूँ मैं अभी। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी और जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, कितना टाइम देना चाहिए मैम हर एक टॉपिक को? और मैं अब जनवरी तक अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस खत्म करना चाहता हूँ, ताकि अगले साल मैं जो नोट्स पढ़ाऊंगा, जो पढ़ूंगा, वो तुरंत 2-2.5 महीने में पूरा हो सके। See, your attempt is in 2024, so you have a lot of time, to say about it, which is also good. आप ज्योग्राफी को अच्छा टाइम दीजिए। आई वुड से 2-2.5 महीने में इसको रश अप मत कीजिए। व्हाट आई वुड से इज दैट इफ यू आर टेकिंग अ फाउंडेशन क्लास, आप क्लासेस अटेंड कीजिए, है ना। अगर नहीं कर रहे हैं फाउंडेशन क्लासेस, कहीं से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो जो बुक्स जनरली होती है, यू कैन ऑल्सो सी मेनी टॉपर्स ब्लॉग्स, वहां से आप बुक्स रेफर कीजिए एंड ट्राई टू मेक योर ओन कंसोलिडेटेड नोट्स। ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो यू नीड टू हैव योर ओन 50 पेज काइंड ऑफ नोट्स होने चाहिए आपके पास। तो फॉर मी, मैंने बहुत कंसाइज कर लिया था अपना मटेरियल, 30-40 पेजेस का एक यूनिट का नोट बना लिया था। तो आप वो कीजिए, बट ये बहुत एंड में होगा। अभी तो आप, आई वुड से, जस्ट कीप रीडिंग द बुक्स। पढ़िए, आप 3-4 बार पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइएगा ज्योग्राफी में। कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली, जो आपको अच्छा एग्जाम्पल लगता है आप न्यूज़पेपर में से लीजिए। 2 कॉपीज बना लीजिए डायग्राम्स की, टेबल बनाना चालू कर दीजिए ज्योग्राफर्स के नाम की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखते जाइए। एंड आप, मैं बोल रही हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को इक्वल टाइम दीजिए,
बिकॉज एग्जाम में यू नेवर नो कि वो क्या ज्यादा क्वेश्चंस पूछ ले किस चीज के, है ना। तो यू गिव इक्वल टाइम टू बोथ ऑफ देम। आप 4 महीने का टारगेट करें ज्योग्राफी कंप्लीट करने का, गिव 2 months टू पेपर 1, गिव 2 months टू पेपर 2। उसमें भी आप सेक्शन ए को पूरा 1 month दीजिए, सेक्शन बी को पूरा 1 month दीजिए, सिमिलरली फॉर पेपर 2 एज वेल। तो गिव इक्वल टाइम आई वुड से, एंड यू कैन गो स्लो। आप 4, 5, 6 महीने लेके भी ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं, सिंस यू हैव यू नो लग्जरी ऑफ टाइम। थैंक यू मैम। Utkarsh, you can. हेलो मैम। मैम एसए में एंटीथेसिस जो है वो सोल्यूशन के बाद डालना चाहिए क्या? No, you have your antithesis before the solution। वो penultimate पैराग्राफ होना चाहिए antithesis आपका, and जो लास्ट में जो आप लिखेंगे that would be your way forward या solution। ओके मैम। एंड मैम लास्ट पैराग्राफ में लाइक यूजुअली क्या लिखना चाहिए? बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंडिंग करने के लिए। सिर्फ सबसे आसान तरीका ये रहता है कि आप समराइज कर दीजिए जो भी आपने ऐसे में पहले लिखा है, उसी को ही आप यू जस्ट रीकन्वर्ट एंड रीफ्रेज। अगर कोई अच्छा कोड आपके ध्यान में आ रहा है, समथिंग यू लकी ऑन दैट डे, एंड आपको कुछ अच्छा कोड याद आ गया, कोई वुमेन पे ऐसे आ गया, आप कोड प्रिपेयर करके गए, एंडेड विद अ कोड। नहीं तो बुद्धा का मध्यम मार्ग लीजिए, एंड यू ट्राई टू रिकंसाइल एवरीथिंग दैट यू हैव सेड इन द एसे, एंड से कि ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, एंड बीच का हमें एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये 2-3 एंडिंग्स है, प्रोबेबली यू कैन फिगर आउट कौन सी करनी है। ऑलराइट मैम। एंड मैम जीएस 2-3 के पेपर्स में लाइक अगर हम वे फॉरवर्ड दे रहे हैं ना, तो कंक्लूजन स्किप कर सकते हैं क्या, मतलब टू सेव टाइम? या आई मीन वे फॉरवर्ड भी आपका कंक्लूजन ही बन जाता है, यू नॉट स्किपिंग कंक्लूजन टू से दैट। अगर आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं वही कंक्लूजन में भी वही लिखते हैं हम एक्चुअली, तो यू कैन डू दैट। अगर आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो या दैट इज कंक्लूजन ओनली ऑफ अ सॉर्ट। ऑलराइट मैम। एंड मैम एथिक्स के पेपर में लाइक केस स्टडी बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है। पेपर मतलब मॉक्स वगैरह में दे रहा तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उस पर अगर आप कुछ लाइट थ्रो कर सकें तो। आई वुड से प्रैक्टिस। देखो 1 hour 30 minutes केस स्टडीज को आपको देने हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज यू नीड टू हैव 1 hour 30 minutes। एथिक्स का पेपर सबसे लंबा होता है, राइट। फ्रॉम ऑल द जीएस पेपर्स एथिक्स इज द पेपर जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट होने में भी, एंड आपको बहुत फास्ट लिखना होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसमें ये नहीं है केस स्टडीज में कि आपको 5 पन्ने देता है यूपीएससी गिव्स यू 5 pages टू राइट, सारे 5 पन्ने भर के आने। डोंट डू दैट। राइट डाउन 3.5 pages, राइट डाउन 4 pages, बाकी का 1 पेज खाली छोड़िए आप। आपने if you have addressed the case study well in 4 pages, you can read the 1 पेज आप खाली छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। आई थिंक राइट मोर, प्रैक्टिस मोर, एंड आपको फिर केस स्टडीज में भी एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यार इस टाइप की केस स्टडी में मुझे इंट्रोडक्शन ऐसे करना है, और इसमें ये मोडस ऑपरेंडी रहता है, पहले सीनियर को बताना है, फिर उसके बाद आई हैव टू रिपोर्ट हियर, विजिलेंस को बताना है, और अगर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है तो फिर फाइनली आई विल डू द विजिलेंस। तो 1 2 3 4 ये पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो द मोर यू प्रैक्टिस, तो आई थिंक प्रैक्टिस कीजिए आप, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। ऑलराइट, थैंक यू मैम। Pragya, you can. Hello, ma'am. Hi. Pragya. Hello, Hi. ma'am. I have done a foundation course for. Pragya, you can ask your question of Shakshi. Shakshi Meher. Hello, ma'am. Hello, good evening, ma'am. Hi, Sakshi. Hi, ma'am. Pragya. Just 1 second question. Ma'am, I want to know about the approach of current affairs, like how you integrated it in the static portion. See, करंट अफेयर्स के लिए पहले तो अपने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखना। यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली, आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए, एंड डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर, वो बहुत ही बल्कि हो जाता है रोज रोज का, है ना, यू वोंट बी एबल टू रिवाइज इट आल्सो। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मेरे जो स्टैटिक के नोट्स थे उसी में ही, क्योंकि आप लूज शीट्स पे नोट्स बना रहे हैं अपने, तो अगर आपको दिखता है कि यार ओके जुडिशरी से रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर चीज करंट अफेयर्स में आ गई है, मैं वो 2-3 पॉइंट जो रहते थे अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी स्टैटिक के नोट्स में। और ये है बहुत ही स्लो एक्सरसाइज होगी, यू आर स्टार्टिंग सब पहली बारी, तो आपके पास जुडिशरी के नोट्स भी नहीं है, और जुडिशरी पेपर में आ रहे हैं, तो वो कहाँ से कैसे लिखूं मैं, मेरे पास स्टैटिक की नोट्स तैयार नहीं है। तो जो छूट रहा है उसको जाने दीजिए, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। फोकस ऑन कंप्लीटिंग वो करंट का जो स्टैटिक पार्ट है, आप उस पर फोकस कीजिए, उसके फटाफट नोट्स बनाइए। करंट अफेयर्स मैगजीन में भी आता रहेगा, तो मैगजीन से आप जब पढ़ेंगे तो आप उसको अपने स्टैटिक में अपेंड कर लीजिएगा बाद में पीछे।
Okay, ma'am. That means like you didn't initially made different notebook for notes. You just added the current affairs in your static notes. Yeah. And the data which you made, did you included it in topic in the current affairs notes, or did you made the separate notebook? मैंने made the करंट separate अफेयर्स notebook. का कोई नोटबुक नहीं बनाया था. मैंने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा था वो मैगजीन्स में ही था मेरे. अगर मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट लगता था तो मैं अपने स्टैटिक में ऐड कर लेती थी, अदरवाइज मैं मैगजीन्स को ही रिवाइज करके जाती थी. Ma'am, and about geography option, I wanted to ask, like there are some questions which are like which come out of nowhere, like the question of articulation. Then how to tackle those questions? हर साल ऐसा एक दो क्वेश्चन आएगा आई थिंक, एंड दैट शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका 300 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना. बाकी के बहुत आसान क्वेश्चन है दैट यू शुड हिट एकदम सही से. उसके बाद अल्टीप्लेनेशन वाला क्वेश्चन देखो, अगर आपने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, तो यू विल हैव कम अक्रॉस द वर्ड प्लेनेशन, व्हिच मींस कि इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द प्लेनेशन प्रोसेस जो भी होती है, एंड द एंड ऑफ एनी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट. बेसिकली वो प्लेनेशन सरफेसेस हम पढ़ते हैं. In that you have peneplains, you have cryoplains, you have arid में भी बनते हैं वही plains, you have pedyplains also, and altiplains भी उसी का ही एक पार्ट है उन्हीं प्लेनेशन सरफेसेस का, इरोजनल सरफेसेस का, जो कि एंड रिजल्ट है. एंड दीज आर नथिंग बट क्रायोप्लेन्स. और अल्टी वर्ड से आपको ऑल्टीट्यूड याद आएगा. ऑल्टीट्यूड से आपको या तो वो ग्लेशियल होना चाहिए या तो वो पेरीग्लेशियल होना चाहिए. अब ग्लेशियल के उसको क्रायोप्लेन्स बोलते हैं, ये मुझे पता था. तो अगर ग्लेशियल के उसको क्रायोप्लेन्स बोलते हैं तो बचा सिर्फ पेरीग्लेशियल, मतलब जो आपके ये हैं अल्टीप्लेन्स हैं वो पेरीग्लेशियल प्रोसेस के प्रोडक्ट्स होंगे. इतना आई कुड फिगर आउट इन द एग्जाम. इसके अराउंड यू राइट 1.5 पेजेस. प्लेनेशन सरफेसेस डिफाइन कर दी, टाइप्स बता दिए, थोड़ा बहुत अल्टीप्लेनेशन बता दिया, पेरीग्लेशियल प्रोसेसेस आपको पता है उसमें कौन सी फ्लक्शन होता है, एंड ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट अबाउट दैट एंड हाउ दीज आर फॉर्म. थोड़ा बहुत उसके अराउंड लिख दिया, दैट्स ऑल. The point is don't get bogged down by such questions. ये किसी को भी नहीं आते हैं, and everybody writes something around them. Don't leave these questions altogether, but try to answer other questions very nicely. जैसे Pacific Ocean bottom floor आया है, वो आपका बहुत अच्छे से आंसर होना चाहिए if that question comes. Hello, ma'am. Yeah, hi. Okay, ma'am, thank you. Ma'am, just one last request I want to make to you. If it is possible that you upload your math work on the Telegram channel. You said like you made like 2 different notebooks for math. Sakshi, I'm not able to hear you. Can you come again? Hello, ma'am. Am I audible? Yeah, now audible. I wanted to make a request. Like you made 2 different notebooks for the maps, right? So if it is possible to upload those notes on Telegram, so that with help of reference, we can just make our own maps. I'll get it scanned and I'll upload on my channel. Sure. Yeah. Thank you so much, ma'am. Hello. 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 Hi. Hello. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Hello. Okay, ma'am. Hello. How? Hello. Hello, ma'am. Hi, Aditya. Tell me. मैम मैंने फाउंडेशन कोर्स कर लिया है, बट मुझे आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है. मैम आई वांट टू आस्क हाउ टू अप्रोच आंसर राइटिंग फॉर ज्योग्राफी ऑप्शन. अप्रोच का कोई वो नहीं है. देयर इज नो कि अब अप्रोच के लिए कुछ सेपरेटली प्रिपेयर करना है. अगर फाउंडेशन कोर्स डन है आपका एंड आपने उसके कंसाइज नोट्स बना लिए हैं, रिवाइज फाउंडेशन के नोट्स जो भी है 2-3 बार रिवाइज कीजिए, उसको छोटा कीजिए आप, है ना, एंड देन स्टार्ट आंसर राइटिंग. राइट अवे आप लिखना चालू कीजिए आंसर्स. अब आपने फाउंडेशन कोर्स कर लिया तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको बताएंगे. उसके बाद you going to make a diagram जहाँ पे आप पैसिफिक ओशन बॉटम फ्लोर का बताएंगे, पैसिफिक ओशन, एंड यू आर गोइंग टू मार्क ट्रेंचेस हो गया, डीप्स हो गए, फिशर्स हो गए, है ना, ये सब आप बताएंगे. कन्वर्जेंट प्लेट्स बताएंगे पैसिफिक फ्लोर में, बेसिन बताएंगे आप. यू आल्सो टेल अबाउट द डिफरेंट आइलैंड्स, सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप ड्रॉ कर देंगे अपने आंसर में. उसके बाद आपको क्या लिखना है, जो आपने डायग्राम में लिखा है उसी को आप बताएंगे एक उसमें करके कि ये आइलैंड्स हैं, आइलैंड के नाम लिख दिए. जो वोल्केनिक आइलैंड्स है, वोल्केनिक आइलैंड्स आपने सेपरेटली बता दिए, हवाई अलूशियन आइलैंड्स बता दिए. उसके बाद नेक्स्ट उसमें आप बेसिन्स बताएंगे, उसमें आप डिफरेंट बेसिन्स को हाईलाइट कर दीजिए, बस उनके नाम लिख दीजिए. फिशर्स के आपको नाम लिखने हैं, आप उनके नाम लिखिए. ट्रेंचेस के आप फटाफट नाम लिखिए, मरियाना ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच, ये वाले ट्रेंचेस आपने लिख दिए. ये 4-5 पॉइंट हो गए आपके पास. उसके बाद आपको बस कंक्लूजन लिखना है, इसमें आपके भर जाएंगे 1.5 पेज. नाउ यू राइट डाउन द कंक्लूजन की कैसे पैसिफिक ओशन बॉटम फ्लो में सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आप अप्लाइड पार्ट बताइए कि अभी भी एक्टिव है 70% ऑफ जो
वोल्केनोज है, अर्थक्वेक्स है, वो यहीं पर होते हैं. यू कैन गिव अ केस स्टडी ऑफ ये अभी कराकटाओ वोल्केनो जो इरप्ट हुआ था पैसिफिक में, सुलावेसी में जो सुनामी आई थी. यू कैन गिव एग्जांपल कि कैसे कन्वर्जन प्लेन से जो अभी भी एक्टिव है, देन यू कैन कंक्लूड योर आंसर. इसमें मुझे नहीं लगता है कि यू हैव सो मच टू राइट एंड उसको कंसाइज करने में दिक्कत है. आई थिंक आप छोटे नोट्स बनाइए. पैसिफिक ओशन बॉटम फ्लोर अगर आपको कहाँ जहां से भी आपने पढ़ा है उसमें 4-5 पन्नों में अगर वो है, उसका आप सिर्फ Yes, एक sir. पन्ना का नोट लिख लीजिए. यू मेक 1 page ऑफ नोट्स फॉर योर ओन सेल्फ, तो वो आपको छोटा Okay. लगेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू Okay. राइट एन आंसर. मैम जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन का कंपेयर एंड कंट्रास्ट का क्वेश्चन है, तो मैम इसको कैसे हैंडल करें इससे? तो मैम दोनों को साथ में लेके चले कि एकदम डिवाइड करके ले चले? देखो, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बोला है, ठीक है, तो पहले तो यू शुड नो कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मतलब क्या है. कंपेयर का मतलब होता है दोनों की सिमिलैरिटीज बताओ, कंट्रास्ट का मतलब होता है दोनों की डिफरेंसेस बताओ. एक सबहेड बनाओ, कंपेयरिंग टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. व्हेन यू कंपेयर यू राइट द कॉमन फीचर्स ऑफ देम. अब भाई टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन में कॉमन क्या है? दोनों साइक्लोनिक है, तो दोनों क्या है? Yes, दोनों ma'am. लो प्रेशर सिस्टम्स है. यू राइट डाउन दिस इन कंपैरिजन फॉर की बोथ आर लो प्रेशर सिस्टम्स, है ना. उसके बाद पॉइंट क्या आ जाएगा आपका कंपैरिजन में कि दोनों ही सिस्टम्स जो है वो डायनेमिक सिस्टम्स है जो कि इंटरलैटिट्यूडनल हीट ट्रांसफर करते हैं अर्थ पर. दे मूव द हीट बेसिकली फ्रॉम रीजन ऑफ एक्सेस टू रीजन ऑफ डेफिसिट. ये दोनों का काम है. उसके बाद कंपेयर में जाएंगे, फिर आप कंट्रास्ट पर आ जाइए. कंट्रास्ट में यू नाउ मेक अ टैबुलर फॉर्म, क्योंकि पॉइंट ज्यादा है, और कंट्रास्ट में आप 8-9 पॉइंट्स लिखिए, दोनों के डायग्राम्स बनाइए एंड गिव अ गुड कंक्लूजन. कुछ केस स्टडीज लिखिए टेम्परेट साइक्लोन की, ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो आए अभी, एंड देन गिव अ गुड कंक्लूजन टू इट. ओके, थैंक यू. Yeah. You can ask. Ma'am, how to bring perspectives in other topics, like while answering other topics? I've heard many toppers saying that, but while writing answers, I just don't get hold over perspectives. पर्सपेक्टिव्स में देखो क्या है, देयर आर डिफरेंट थीम्स इन पर्सपेक्टिव. जैसे कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, और आपके पास एनवायरमेंटलिज्म का पैराडाइम है. एनवायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, वेयर इट इज टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन, वेयर इट इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, उसमें आप एनवायरमेंटलिज्म लाइए. स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में ग्रिफिथ टेलर बोलता है कि नेचर की कुछ लिमिट्स है, व्हेन यू ब्रीच देम देन नेचर इज गोइंग टू शो यू दैट पर्टिकुलर साइड जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है. व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू डिजास्टर्स, you can bring this stop and go determinism, जहाँ पे you can talk about this anthropocentric changes जो कि man ला रहा है. Similarly, when you talk about migration, उसमें आप रैट्जल को लाइए. रैट्जल का एंथ्रोपोजोग्राफी 2 जो वॉल्यूम था, उसमें रैट्जल had talked about migration and that how migrants carry the culture with them when they move across from one place to another place. Similarly, possibilism जो विडाल का है, उसमें he talks about जॉनर दीवे एंड पेस का कंसेप्ट. जॉनर दीवे की हर एक पर्टिकुलर एरिया का अपना एक पर्टिकुलर यूनिकनेस होता है जो वो एरिया में होता है, एंड देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. तो जब आप टेक्नोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, जैसे जब आप बताते हैं कि देयर इज टेक्नोसेंट्रिक व्यू की आप बात करते हैं कि ह्यूमन ने इतनी प्रोग्रेस कर ली एंड ऑल, देयर यू कैन ब्रिंग दिस टेक्नोसेंट्रिक व्यू, इकोसेंट्रिक व्यू, कॉर्नोकॉपियन व्यू. तो आई थिंक गायनिज्म का एक कंसेप्ट होता है कि मदर अर्थ है, गॉडेस है, एंड वी हैव टू सेव द अर्थ. इन सब में आप यू कैन ब्रिंग योर पर्सपेक्टिव्स, जहां पर आप वेलफेयर ज्योग्राफी आप बहुत जगह ला सकते हैं. एचडीआई का क्वेश्चन आएगा, वेलफेयर ज्योग्राफी पैराडाइम लिखिए कि कैसे वेलफेयर ज्योग्राफी ने जो है एचडीआई को बहुत पहले ही ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस कर दिया था एज अ थीम. जब आप इनइक्वालिटीज की बात करें, देन यू मेंशन अबाउट वेलफेयर ज्योग्राफी एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज, बिकॉज दे टॉक अबाउट दी स्पेशल इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोब. तो देयर यू ब्रिंग द मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर. फेमिनिस्ट ज्योग्राफर्स को लाइए स्पेशल इनइक्वालिटीज में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ऐसे करके मतलब व्हेन यू रीड इट, आप बहुत कॉन्शियसली पढ़िए कि ये मैं कहाँ इंक्लूड कर सकती हूँ ये वाले टॉपिक्स को. देन यू विल गेट डिफरेंट आइडियाज. ये तो मैंने बहुत कॉमन से एग्जांपल्स आपको बताएं, बट व्हेन यू रीड मोर इन डेप्थ आपको खुद ब खुद आइडियाज आते जाएंगे पर्सपेक्टिव्स कैसे यूज करना है. एंड डोंट ओवर यूज इट. आप 4-5 आंसर्स में यूज कीजिए, हर आंसर में नहीं करना है पर्सपेक्टिव यूज. Okay, ma'am. Okay. And ma'am, how to consolidate biogeography and environmental geography? देखो मैं तो मेरा वही आंसर है कि आप टॉपिक वाइज चलिए. बायोज्योग्राफी में क्या टॉपिक है, पेपर 1 में और पेपर 2 के दोनों के मिला के आप रखिए. पेपर 1 में जेनेसिस ऑफ सॉइल है. जेनेसिस ऑफ सॉइल में आपको 5 वो लिखने हैं कि सॉइल बनता कैसे है. वो 5 फैक्टर्स लिखिए आप सॉइल के जो होते हैं, टाइम होता है और जो भी प्रोसेसेस होती है वो लिखिए, और फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं सॉइल को. इसका एक पन्ने का नोट्स हो जाएगा. फिर होता है क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल.
उसमें आप बताइए वर्ल्ड में कैसा क्लासिफाइड है सॉइल। जो हम 10 टाइप के सॉइल पढ़ते हैं यूएस के, यूएसडीएल के जो सॉइल पढ़ते हैं, और जो रशियन पीडियोलॉजिस्ट ने जो टाइप्स ऑफ सॉइल दिए हैं, एक वर्ल्ड मैप बनाइए, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए सॉइल का। इसके हो गए 2 पेज। सॉइल प्रोफाइल है थर्ड टॉपिक। राइट डाउन अबाउट द डिफरेंट सॉइल प्रोफाइल। जो हर टाइप के सॉइल की अलग सॉइल प्रोफाइल होती है, उसके बस डायग्राम बनाइए आप सॉइल प्रोफाइल के। सॉइल इरोजन एक टॉपिक है, सॉइल इरोजन एक टॉपिक आपको पेपर 2 में भी है। दोनों का आप इंडिया पर्सपेक्टिव से भी लिखिए सॉइल इरोजन, और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से भी लिखिए। एक वर्ल्ड मैप बनाइए आप, कहाँ पर सॉइल इरोजन डिग्रेडेशन हो रहा है। इंडिया में एक मैप बनाइए, कहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। राइट डाउन सम स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू इट। कोई रिपोर्ट्स आती है सॉइल की, इसरो ने निकाली है, सॉइल एंड डेजर्टिफिकेशन एटलस, उसके बारे में आप मेंशन कीजिए, उसका एक पन्ना लिखिए। ऐसे हर टॉपिक को लीजिए और हर टॉपिक का एक पन्ने का नोट्स बनाइए अपना। ओके मैम, ओके। एंड मैम पेपर 2 लिखते वक्त बहुत ज्यादा मैं ओवर एम्फेसिस करती हूँ अगर कि मैं ज्योग्राफी लाऊं फिर भी नहीं आ पाता है, तो बहुत जीएस और जनरल आंसर्स लगते हैं, तो हाउ शुड आई इम्प्रूव दैट? See, to bring geography in your answers, एक तो maps तरीका है, right? You make world maps, you make India maps, that is geography. उसके बाद हर एक पर्टिकुलर चीज का है ना, जैसे आप सिलेबस को अगर ध्यान रखेंगे तो सिलेबस के पॉइंट्स आप यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन होता था ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन का, तो मैं उसमें हमेशा रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का एक एस्पेक्ट लाती थी कि अगर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ग्रोथ में ट्रिकल डाउन होगा एंड दैट विल लीड टू रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो आर रीजनल डेवलपमेंट होगा तो बैकवर्ड एरिया हो गया, हिली एरियाज होगा, वहां पर भी डेवलपमेंट स्प्रेड होगा अगर ट्रेड ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। तो सिलेबस को आप यूज कीजिए। पॉपुलेशन सेटलमेंट से एक पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट एग्रीकल्चर से लिखिए, एक इंडस्ट्री से लिखिए, एक कल्चर से लिखिए, एक इंटरनेशनल लिखिए जो पॉलिटिकल वाला होता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो पॉइंट होता है। इंडस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो वेबर को आप लाइए पेपर 2 में। if it is talking about any kind of industry, you bring वेबर ने इंडस्ट्रियल रीजन्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है। सिमिलरली पॉपुलेशन का कोई क्वेश्चन है तो आप डीटीएम की थ्योरी को लाइए कि नॉर्टेस्टीन और थॉमसन ने क्या बात की थी अपने, और इंडिया कौन से फेज में है डीटीएम के, यू ब्रिंग इन। माइग्रेशन का कोई क्वेश्चन है तो आप जेलेंस्की को लाइए। माइग्रेशन का क्वेश्चन है आप रेवेनस्टीन को लाइए कि इंडिया में जो माइग्रेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट रेवेनस्टीन सेड कि माइग्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो आई यूज्ड टू डू लाइक दैट। जो भी आपने मॉडल थ्योरीज पढ़े हैं वो आप पेपर 2 में इंक्लूड कीजिए, दैट विल मेक योर आंसर ज्योग्राफिकल। उसके बाद आप ज्योग्राफर्स की जो लिस्ट मैंने बोली है, इफ यू मेक दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यार आरडीपी में तो आरएल सिंह का भी नाम आएगा जो कि इंडियन ज्योग्राफर है, तो इंडियन ज्योग्राफर की भी आपके पास एक अच्छी लिस्ट तैयार हो जाएगी। यू यूज दोस। हाँ रोहित मैम, सर मेरा क्वेश्चन, सर मैं स्टार्टिंग से ही वेट कर रहा हूँ सर, मैंने हैंड भी सबसे पहले उठाया सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैम आई एम बिगिनर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कैसे किया था अपने 3rd 4th अटेम्प्ट में, और मैम लास्ट क्वेश्चन की मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सोल्यूशन है वो कहाँ से चेक करें जो एग्जाम में हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं उसके लिए। थैंक यू मैम। देखो प्रीलिम्स के जो आप क्वेश्चंस बोल रहे हो एनालाइज आपने कैसे किए, तो एक मृणाल सर का या किसी का भी जो आता है प्रीलिम्स का वो आप उठाइए सारे क्वेश्चंस और आप देखिए कि आप क्या आंसर मार्क करेंगे, आंसर क्या है यूपीएससी का। उसके बाद अगर आपका सही है तो इट्स वेरी गुड, गलत है तो क्यों गलत है वो देख लीजिए और उसका लिख लीजिए कि आपने क्यों गलत किया। उसके बाद उसके कुछ मैम बिगिनर हूं मैम, मुझे पता नहीं मैम, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, बिगिनर हूं तो मैं प्रीवियस ईयर को यूज कैसे करूं? मैं बिगिनर, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कौन सही कौन गलत है। देखो बिगिनर हो मतलब प्रीलिम्स का पहले तो वो फिर नाउ व्हेन यू सॉल्व दोस क्वेश्चन आप कॉन्शियसली सॉल्व कीजिए कि आपने उन क्वेश्चन को सही किया है या गलत किया है। अगर सही किया है तो इट्स गुड, आपको वो कंसेप्ट आता है। अगर गलत किया है तो उसका सोल्यूशन पढ़िए, अगर सोल्यूशन दे रखा है तो इट्स गुड, अगर नहीं दिया है तो आप गूगल पर जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, सोल्यूशन पढ़िए और उसको कहीं लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि मैंने ये गलती की थी एंड दिस इज द राइट कंसेप्ट। उसके बाद आप देखेंगे कि उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं। एक तो आपने सही ऑप्शन आपने पूरा एनालाइज कर लिया, बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं आप उनको भी एनालाइज कीजिए। तो यू टेक दैट ऑप्शन, उसको भी आप गूगल पे सर्च कीजिए और उसके बारे में भी आप चीजें लिखिए, बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड इट, सो यूपीएससी को वो इंपॉर्टेंट लगता है वो ऑप्शन भी, भले ही वो गलत है तो वो भी आप सर्च कीजिए इंटरनेट पर जाकर, दैट विल आल्सो हेल्प यू। उसके बाद आप पैटर्न एनालाइज कीजिए, थीम्स ढूंढिए प्रीवियस ईयर्स में से कि यूपीएससी क्या क्या बार बार पूछ रहा है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में दे विल ऑलवेज आस्क यू क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उनके बाद मिडिवल इंडिया में उनका फेवरेट टॉपिक है विजयनगर एम्पायर एंड गुप्ता वाला, तो वो मुझे अच्छे से पढ़ के जाना है। अशोका इज देयर फेवरेट थिंग, तो वो मुझे अच्छे से पढ़ के जाना है। पॉलिटी में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो पूछते रहते हैं, तो पॉलिटी में आप गवर्नर पढ़िए अच्छे से, प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पढ़िए। दे आस्क पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, एफडीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्वदेशी मूवमेंट पे 3-4 बार क्वेश्चन आया है, क्यूआईएम पर आया है ना, पीजेंट मूवमेंट्स पर आए हैं।
तो आप क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट थीम्स उठाइए PYQ से कि यूपीएससी की क्या फेवरेट एरियाज है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है, एंड देन गो बैक एंड रीड दोस वेरी नाइसली. उनको भी आप ऐसे आप एनालाइज कीजिए व्हेन यू एनालाइज प्रीलिम्स. और एक आपने हाँ मेंस के सॉल्यूशन कहाँ से देखे जहाँ जो रेप्लिकेट कर सकते हैं एग्जाम? सी मेंस के आंसर राइटिंग के सॉल्यूशंस आई थिंक विजन आईएएस ने डिस्कस करे हुए हैं अपने चैनल पर यूट्यूब में फ्री में. यू कैन रेफर टू दोस. और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस फ्री में अब सॉल्यूशंस देने लगे हैं, तो आप इंटरनेट का हेल्प लीजिए. देयर इज नो बुक, आई कैन नॉट रेकमेंड एनी बुक फॉर दैट. तो आप यूट्यूब पर जाइए, वहां पर आपको मिलना चाहिए सॉल्यूशंस. Guys, I think we must conclude this. Can I speak? Hello, ma'am. Hi. Hello. Hi. Hi, Sakshi. Good evening. Good evening, ma'am. I am Sakshi Upadhyay from Indore. Ma'am, I have done BTech from Computer Science Engineering from Medicaps University. मैम मैंने इस बार प्रीलिम्स दिया था इस बार, बट मेरा क्लियर नहीं हो पाया है. मैम मेरा डाउट ये है कि मैम मैं मेंस का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करूं कि प्रीलिम्स का ही करूं मैम मैं स्टार्ट? साक्षी, आप अभी मेंस का पढ़ो. डू नॉट स्टडी फॉर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स आप फरवरी से स्टार्ट कर देना या जनवरी मिड से कर देना. नाउ इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टडी फॉर मेंस इररिस्पेक्टिव आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है. दैट इज ओके, बिकॉज मेंस का भी बहुत नॉलेज प्रीलिम्स में काम आता है टू एलिमिनेट ऑप्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट आल्सो. सो स्टडी फॉर मेंस राइट नाउ. ओके मैम. मैम आई हैव वन डाउट. ओ मैम, मैम फॉर एग्जांपल मैम लक्ष्मीकांत अगर रीड करिए मैम, तो मैम लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है या फिर मैम ओनली फॉर रीड कर लें उसके? आप उसी में ही रीड कीजिए. लक्ष्मीकांत इज अ बुक जो आपको कवर टू कवर पढ़ना है, एंड उसके नोट्स बनाना इज लाइक मेकिंग अनदर लक्ष्मीकांत ओनली. उसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है. तो डोंट मेक नोट्स ऑफ लक्ष्मीकांत, है ना. आप छोटी छोटी चीजों के नोट्स बना सकते हैं, जैसे आर्टिकल्स लिख लिया आपने एक जगह पर लक्ष्मीकांत के, दैट इज ओके, बट डोंट मेक नोट्स इन एंटायरिटी ऑफ लक्ष्मीकांत. मैम और मैम मेंस के पर्सपेक्टिव से मैम लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है कि डीडी बासु भी मैम रेफर करना होगा? ओनली रीड लक्ष्मीकांत, डू नॉट रीड डीडी बासु. इट्स अ डिफिकल्ट बुक एंड टाइम वेस्ट है. मल्टीपल नहीं करना है, सोर्सेस मल्टीप्लाई नहीं करना. ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. Yeah, ma'am. Can I speak? Hello. Yes, Hari. Yes, Hari. मैम हेलो मैम. हेलो. हाँ हरी, बताइए, बोलिए. मैम कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. Please ask your question. Yes ma'am. Ma'am, my name is Hari ma'am. I was preparing from Hyderabad, but after this prelims I moved to Delhi for geography optional. Okay. Ma'am, I started I have completed my foundation courses from my Next IAS Institute. Okay. Now I started preparing for geography optional. I started reading this Savindra Singh books, ma'am. Oceanography I started, but it's taking too much time to complete the book. Actually, it's been 20 days I completed reading the oceanography book, and then after reading that, I tried to solve previous year question, but I was not able to still. I think I'm not prepared to write the answers. So is it required to read this book? First of all, see Hari, it should not take you 20 days to go through the book. आप फिर cover to, you're reading the book from cover to cover, right? So don't do that. You already have done your foundation course. You have notes, right, of every topic. I'm supposing, if not of every topic, at least of major topics, you have notes. So Yes, what ma'am. you do is, you see the important topics, like in oceanography, it starts from the ocean bottom floor. You would have 2 to 3 pages of ocean bottom floor notes. Do not read ocean bottom floor from Sabinder Singh now, whatever book you're reading. You already have a diagram which would have been given to you in class, and you have sufficient material class में जो दिया है आपको. You just compress that material into 2 pages. Don't read that topic from book. Read only that topic from book which has not been taught to you in class, or you have some difficulty understanding that topic. Then you refer the textbook for some additional clarity. Otherwise, you rely on your class notes. Try to compress your class notes. Do not read additional books. It will take a lot of time, and return on investment is very, very less. Okay. Right. And about answer writing, you were saying that you're not able to write answer, or you don't think you'll be able to address the answer properly. It will happen initially. This would happen that you will not be able to understand the question, but just be patient with yourself. Revise and keep understanding your content. Once you are done with it nicely, you will be able to answer it. So slowly and gradually, you will be able to answer the questions also.
Okay, ma'am. Thank you. Okay, हरी। Or you can ask. हेलो मैडम हाँ रोहन Hello. पूछिए। मैडम मेरा नाम रोहन है, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। Your voice is really very less. Can you just speak a little loudly? मैडम मेरा नाम रोहन है, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। जी रोहन बताइए। मैडम मुझे ये पूछना है मैडम कि जो वैल्यू एडिशन मटेरियल मैडम होता है GS 1 2 3 के लिए मैडम, कैसे उसको करें कि हाँ जिसको Can you type your query because I'm not able to hear you. Please can you just type it? आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैडम GS 1 2 3 में मैडम कैसे वैल्यू एडिशन मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं, तो कहाँ से ये करें मैडम, ये पूछना चाहते हैं। Is somebody able to hear what he is asking? He's asking how to do value addition in GS 1 to 3. Okay, how do you do value addition in GS 1 2 3? देखो value addition क्या होता है? You have your notes prepared. GS 1 का अगर आपके पास सारा notes prepared है तो value addition में आप सिर्फ current affairs ऐड कर सकते हो या कोई डायग्राम्स एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो। वन में जहां तक मुझे लगता है ज्योग्राफी में यू कैन हैव मैप्स, तो आप मैप्स इंक्लूड करिए वैल्यू एडिशन के लिए। कुछ एग्जांपल्स, कुछ करंट अफेयर्स, केस स्टडीज इंक्लूड कर लीजिए ज्योग्राफी में। जैसे इस बार वोल्केनो लैंडस्लाइड्स पे काफी क्वेश्चन थे, तो अगर आपके पास रेडीमेड केस स्टडीज थी तो यू कुड हैव आंसर्ड इट वेरी वेल, तो वो एक आप कर सकते हैं। सेकेंड, आई थिंक सोसाइटी में एग्जाम्पल्स आर समथिंग दैट विल मेक यू स्टैंड आउट, तो आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड कीजिए सोसाइटी में, एज मच एग्जाम्पल्स यू कैन फाइंड आउट, आप वो इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। GS2 में आप आर्टिकल्स लिखिए, दैट विल बी, एंड जजमेंट सारे एक जगह पर लिख लीजिए वैल्यू एडिशन के लिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड आर्टिकल्स। एंड IR के पेपर में मैप विल बी योर वैल्यू एडिशन, आप मैप्स बनाइए जितने आप बना सकते हैं IR में। सिमिलरली GS3 में आई थिंक इट्स मोस्टली आपका करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है, तो उसमें ज्यादा वैल्यू एडिशन तो आप नहीं कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू रीच बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वहां से अगर आप कुछ बहुत रेलिवेंट कोट कर पाए पेपर में उस टाइम, तो इट विल बी गुड। लाइक दिस इज, आई थिंक दिस विल सफाइस, और कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं करना है। मैडम एक चीज और पूछना है मैडम, प्रीलिम्स में जो होता है मैडम उसमें आजकल करंट अफेयर्स का बहुत रोल हो गया है मैडम, तो प्रीलिम्स में हम कैसे पेपर को पढ़ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं ये चीज प्रीलिम्स से पूछी जाएगी, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ बहुत सारा ऐसा लगता है कि ये आ सकता है वो आ सकता है, तो कैसे हम सॉर्ट आउट करें प्रीलिम्स में। Anmol, can you just repeat what he said? I think he's asking regarding uncertainty of the prelims. Uncertainty of prelims. See, uncertainty prelims की तभी रहेगी when you don't prepare for prelims. Prelims is always going to be uncertain, and there will be always 10,000 people clearing prelims every year, howsoever tough it might be. चाहे आपका कट ऑफ 50 ही क्यों ना चले जाए, 10,000 बच्चे हमेशा निकलेंगे। So don't think that prelims uncertain है, तो what do we do? Prepare for prelims nicely. 4 महीने आपको prelims ही तो पढ़ना है पूरा, आपको वही 6 किताबें पढ़नी है, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एनालाइज करना है, एंड यू हैव टू कीप दैट ऑन द रिपीट मोड में। देयर इज नो कोई रामबाण नहीं है प्रीलिम्स क्लियर करने का कि ये बता दिया तो इससे हो ही जाएगा शॉर्ट। यू जस्ट हैव टू डू दिस सिंपल थिंग, इसको आप अच्छे से करेंगे ऑनेस्टली तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा क्लियर। और कोई, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर, ट्रस्ट मी, देयर इज नो अदर वे फॉर प्रीलिम्स, यही करना है। थैंक यू मैम। Ask your doubt. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, I have one small question. Yeah. Hello. Yes, I know your question. Now you can ask your question. हेलो हेलो Yes, please Hello, ask ma'am. the question. Yes. Yeah, I am Prahar. I am in final year BTech now. So my attempt is in 2023. So means I am also trying to make notes according you said, like for GS2 I have made like head topics like separation of powers पे बोला था, उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है, उसका मेन है क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एक पेज मतलब लिख लिए बाजू में, वे फॉरवर्ड क्या है, इश्यूज क्या है, उस तरीके से मैंने नोट्स बना दिए। वो अभी चल रहा है प्रोसेस में। और मतलब बेसिकली प्रीवियसली मैंने जो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री है जो पढ़ के रखा है, लेकिन फिर वहां पे दिक्कत ऐसी आ रही है कि रिवीजन में इशू आ रहा है। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ तो लास्ट मंथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दी थी, तो फिर अभी नेक्स्ट मंथ भी उसको रिवाइज करना, तो फिर वो आता है कि भूल रहा हूँ शायद से, तो फिर वो टाइम के इसमें आ रहा है कि उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं, कि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट आ रहा है, उसको ये भी रिवाइज करना है, ये भी रिवाइज करना है, ऐसा हो रहा है। देखो प्रहार, आई वुड से कि रिवीजन तो यार करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू टेक आउट टाइम, थोड़ा टाइम निकाल के आपको एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
एंड देर इज नो अदर वे कि मतलब रिविजन मैं अब निमोनिक्स बना लेती थी कभी कभी चीजों की, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यार बहुत डिफिकल्टी होती है सब कुछ याद करने में। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि थोड़े निमोनिक्स बना लिए कुछ चीजों के, तो उससे थोड़ा अच्छे से याद हो जाता था। और कुछ चीजों को मैंने सेपरेटली एक कॉपी में लिख लिया था जो मैं बार बार भूल जाती थी। तो आप थोड़े बिट्स एंड चंक्स में रिवाइज कर सकते हो। जैसे यू नो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करो। वो 3 जो बड़े बड़े होते हैं ना, कि वो एक फेजेस होते हैं 1905 से लेकर एक 1919 वाला, उसमें थक जाते हैं हम एंड में आते आते। तो व्हाट यू डू इज पीछे से रिवाइज स्टार्ट करो। प्रेस पढ़ लो पहले, एजुकेशन पढ़ लो, पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ लो, ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ लो, है ना, और फिर गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ लो। और ये बड़े जो बड़े से 3 चैप्टर्स है वो एंड में कर लो। तो थोड़ा उससे थोड़ा सा यू नो डिफरेंट फील हो जाता है, तो मोनोटोनी भी नहीं रहती और रिवीजन करने में थोड़ा मजा आ जाता है। बट तरीका वही है यार, रिवाइज तो करना पड़ेगा। ओके, मैं मतलब समझ गया, मतलब करना है उसको। मतलब टाइम का ये हो रहा था क्योंकि फाइनल ईयर बीटेक चल रहा है, प्रोजेक्ट भी है, तो उसमें ये हो रहा था। यू नो डू दिस प्रोजेक्ट वाला बीटेक भी आप अच्छे से अपना यू नो निपटा लो, एंड वंस यू आर डन विद इट फिर फुल फ्लेजेडली यूपीएससी के लिए कर लेना। यू एनीवे वुड हैव प्रिपेयर्ड। तो 2023 का थोड़ा सा दूर भी है तो चलेगा, थोड़ा टाइम कॉलेज को कंप्लीट करके देन यू गिव। हाँ, मतलब कॉलेज कंप्लीट 23 में खत्म हो रहा है, मई में, उसी दिन पेपर है, बर्थडे के दिन, तो फिर उस दिन देना है। तो मतलब सोशियोलॉजी जो मेरा ऑप्शन है वो हाफ कंप्लीट हो चुका है मेरा, और मैं उसके टेस्ट भी लिख रहा हूँ। तो मतलब फीडबैक भी अच्छा आ रहा है कि कॉन्सेप्ट है दिमाग में है। तो जो 10-10 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी अच्छे 6-7 मार्क्स आ रहे हैं। व्हाट माय एडवाइस वुड बी कि अभी प्रिपेयर करते रहो एज इफ यू हैव टू राइट 2023 अटेम्प्ट, बट राइट द अटेम्प्ट ओनली इफ यू आर वेरी श्योर कि तुमने प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। डू नॉट वेस्ट एनी अटेम्प्ट कि बस ये मतलब लिख के देख लेंगे एंड हाउ इज पता चल जाएगा यूपीएससी कैसे सवाल पूछते हैं, वो नहीं करना। इफ यू थिंक ऑन द डे ऑफ एग्जाम तक आप यही सोचो कि आपको लिखना है, उस दिन लगे कि हाँ यार आई एम टोटली रेडी, देन गो एंड राइट द एग्जाम। अदरवाइज आई थिंक अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का हुआ भी नहीं है तो एनीवे आप बाद में भी कर सकते हो, बट अभी पढ़ो, उसी मोड में पढ़ो, बट डोंट जस्ट गिव द अटेम्प्ट टू जस्ट राइट द एग्जाम, वो मत करना। यस मैम, last 4 questions we can ask and we conclude the session. So last 3 questions. Yes, one go. Good evening, ma'am. Hi, good evening. 2023 will be my second attempt, and I have been facing an issue that I have been practicing the answer writing for past 2 months, and my speed is hovering around 13 to 15 minutes for 2 pages and 18 minutes for 3 pages, like in 250 words question. So this is the first issue, and the second question is like when should I join the main test series? That's all, ma'am. Thank you. See, आपकी जो स्पीड का इशू है वो मैं ये बोलूंगी कि द मोर यू प्रैक्टिस आपका स्पीड उतना यू नो ज्यादा होगा। देयर इज नो वे अराउंड इट। आप जल्दी लिखिए, मतलब स्पीड कम है तो जल्दी लिखिए, बहुत ही कॉमन वाला मैं आपको आंसर दे रही हूँ, बट और कोई फंडा नहीं है यार स्पीड इंक्रीज करने का ना। आप जितना जल्दी लिखो, थोड़ा पेन वेन चेंज करके देख लो अगर हो सके तो। और देखो एक इशू तब होता है कि आप आंसर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो जब आप सोच रहे हो। तो अगर आप सोचने में ज्यादा टाइम ले रहे हो देन इट माइट बी प्रोबेबली कि आपकी स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो अगर ऐसा इशू हो रहा है तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग फास्टर। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी, कि आप फटाफट कैसे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। यू थिंक ऑन दोज लाइंस। भाई जब भागोगे ना ऐसे दबा के और ऐसी डायरेक्शन में भागोगे जहां कोई नहीं भाग रहा और तुम जैसा भाग नहीं पा रहा क्योंकि देख के डर रहे हैं कि यार ऐसा भागूंगा तो गिर जाऊंगा, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तब ऐसी सक्सेस मिलेगी जितना वो लोग पूरे लाइफ में नहीं। आपको पता चलेगा आप 3 साल में